Hello friends, Rachit here. So welcome to my video and welcome to my channel also, which has been started today. New channel है, पुरानी चैनल हैक हो गई थी, you know that. उसको भी रिकवरी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, यूट्यूब के साथ में अभी भी कांटेक्ट में है. So today in this session we'll be discussing about how I traded Bank Nifty, IndusInd Bank, Sun Pharma. जो शेयर्स मैंने ऑलरेडी व्यू दिए थे एंड व्यू देने के बाद में उसको ट्रेड कैसे लिया. ठीक है, दिस विल बी ए इंट्राडे स्ट्रेटेजी ऑल्सो, कैन बी यूज फॉर स्काल्पिंग एज वेल एज इन इंट्राडे. तो कैसे आप उसको ट्रेड ले सकते हो. ठीक है, तो आई विल जस्ट शो यू फर्स्ट एग्जांपल बैंक निफ्टी मॉर्निंग में, और या तो फिर जो सन फार्मा और डीमार्ट का दो चार्ट्स शेयर किए थे कल शाम को. एंड यू नो दैट सन फार्मा में आई टोल्ड के व्यू बुलिश है ना, बियर्स कैन बी इन द ट्रैप. ठीक है, आई विल लिंक द ट्विटर पोस्ट ऑल्सो, टेलीग्राम पे भी किया था सेम पोस्ट. डीमार्ट का भी बुलिश व्यू था. फिर बैंक निफ्टी का मॉर्निंग में एक कॉल दिया था मैंने 1850 के आसपास, 18,050 के आसपास बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एंड 18,000 was like a support and 18,150 160 was an immediate resistance. This is what I have written. I have also written that I will not go aggressive shorts here. So I was going for long. Even I have written that I am buying at the CMP. So CMP was around 18,050. So that was a general overlook. What was the scenario? Now I would be showing you how I have traded it. Let's say IndusInd Bank. First we'll see the chart of IndusInd Bank. We'll see what is the situation in IndusInd Bank. So what was the situation if you see on daily chart? If you just see this daily chart, what was the situation? It's completely bearish, correct? So it was having a this was a resistance zone and it has a trend line this, and will not go into much discussion of pattern or something, but it was having a clean way that it is having a breakdown, and almost every time it is facing resistance over this line. So basically first it was inside this, but it has a given a good breakdown at this point. So completely chart was bearish, the trend was bearish. So what was our outlook? We have seen that what was the outlook of the chart, particularly of that company. So that company is showing चार्ट बियरिश है ना, चार्ट का बियरिश आउटलुक निकल रहा है. अब अपने को ट्रेडिंग लेना है इंट्राडे ट्रेडिंग में. इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्काल्पिंग के लिए आई वुड बी बेस्ट टाइम फ्रेम इज 1 मिनट एंड 5 मिनट. तो आई वुड गो टू 1 मिनट 5 मिनट. Even those who cannot trade on 1 minute and 5 minutes, because moves are very quick, you have to think very quick decision होता है वहां पे. तो you can stay with 5 and 15 minutes or 10 or 3, any time frame you want to choose for intraday में. तो basically what I have noticed is I have gone to 1 minute time frame. Let me show you. तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आई वेंट एंड देन व्हाट इज द सिनारियो. लेट मी यूज द VWAP. द इंडिकेटर विच आई हैव यूज्ड वाज VWAP, है ना. देयर आर मेनी थिंग्स. इवन आई हैव shared 50 high 50 low strategy also. डॉक्यूमेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू देम. दैट document of 50 high 50 low and 15 close strategy. I will be making that video also sooner or later, है ना. Let's see how the audience is looking forward. तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियोस बना रहे हैं. डेफिनेटली आई एम मेकिंग वीडियोस टू हेल्प यू आउट. तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं. तो डेफिनेटली बने रहिए. थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बट विल बी हैविंग अ लाइव केस स्टडीज और विल अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्ले आउट. अब VWAP ये चार्ट था. इफ यू सी दिस इज द जोन राइट नाउ. ठीक है, तो लेट मी जस्ट मार्क फॉर यू. So this was 21st, correct? So if you see here, this was the 21st. It was today's time. तो यहाँ पे at the opening it's like around zigzag move, है ना. तो around VWAP, and then what happened? It was like opened around that level, and then stock was not able to cross this line. Then what happened? If you see, it went below VWAP at this point. ठीक है,
अपना चार्ट बियरिश है ये लार्जर टाइम फ्रेम का, तो अपन पॉसिबिलिटी ट्रेड वही लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज टू चेक व्हाट इज द चार्ट आउटलुक। तो चार्ट का आउटलुक बियरिश है। नाउ सेकंड स्टेप इज टू फाइंड ट्रेड ऑन शॉर्ट साइड। अब शॉर्ट साइड के ट्रेड के लिए अपन कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, तो दैट इज द वीवेप स्ट्रेटेजी। वीवेप स्ट्रेटेजी का यूज करेंगे अपन शॉर्ट साइड के लिए। नाउ व्हाट इज द थिंग हियर, अब यहाँ पे एक वीवेप स्ट्रेटेजी अपन ने लगाया है, वीवेप का इंडिकेटर लगाया है। व्हाट इज वीवेप, वीवेप इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइसिंग। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको, वो चेक कर लेना। अगर आपको नहीं पता है तो यू जस्ट रीड अबाउट वीवेप ऑन गूगल ऑल्सो, तो आपको थोड़ा नॉलेज इनहेंस हो जाएगा। तो व्हाट विल बी डिस्कसिंग टुडे इज हाउ वीवेप कैन बी used particularly here. Okay, so what will be the scenario when we have seen after the price went downside and again it is trying to hit the VWAP line, and you see VWAP was acting as a resistance here. Oh my god, oh my god, where a lot of people are asking for support and resistance. You will see it's a dynamic support and resistance here, है ना। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल गया है आपको। विवेप एक जो सिनारियो बता रहा है आपको, वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का सिनारियो मिल चुका है आपको यहाँ पे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, आप यहाँ पे देखेंगे एवरी टाइम इट इज हैविंग अ रेसिस्टेंस, तो क्लीन सिग्नल मिल रहा था आपको कि शॉर्ट करने का। बट क्या हो रहा था, इफ यू सी दैट दैट वाज प्रॉपरली, इफ यू नोटिस काइंड ऑफ we have a if we see, तो सपोर्ट भी था यहाँ पे, रेसिस्टेंस भी था, तो एक रेंज में था, है ना। ओवरऑल अगर अपन बात करेंगे तो व्हाट इज द सिनारियो, इट वाज इन रेंज एंड वीवेप के नीचे और ये लाइन के ऊपर, तो इट वाज गिविंग अ सेल सिग्नल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज सेलर्स आर सेलिंग हियर, बट सोच रहे होंगे मूव नहीं आ रहा है, मूव नहीं आ रहा है, उनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली, सबका स्टॉप लॉस इसके हाई होगा लाइन के, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, ट्रेंड स्टार्टेड फॉलोइंग डाउन साइड, यहाँ से ट्रेंड स्टार्टेड फॉलोइंग डाउन साइड, लोअर हाई एंड देन स्टार्टेड। तो व्हाट यू कैन डू, आप या तो यहाँ पे शॉर्ट कर लो, है ना, रेसिस्टेंस क्योंकि शॉर्ट मिल रहा है, लार्जर टाइम फ्रेम बियरिश है, तो आप शॉर्ट कर सकते हो यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करते हैं। स्टॉप लॉस आपका रेसिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्ट मत लगाओ, थोड़ा सा ऊपर नीचे लगा लो, सो दैट ऐसी जगह स्टॉप लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ कि वो आपको ट्रिगर नहीं कर पाए, और ऐसा लगाओ कि जो आपका मनी के साथ में मैनेज हो रहा है। जैसे आप 1000 रुपए नुकसान कर सकते हो एक ट्रेड में, तो मेक श्योर यू आर कैलकुलेटिंग दैट वे, है ना। इफ यू आर एबल टू लूज 1000 रुपीज, देन ओनली मेक श्योर यू आर ट्रेडिंग दैट मच क्वांटिटी विच इज अलाउिंग यू टू लूज 1000 bucks, ठीक है। तो अपना अपना सिचुएशन के हिसाब से जस्ट मेजर द रिस्क मैनेजमेंट एंड हाइड समवेयर अबाउट रेसिस्टेंस, सो दैट नोबडी कैन सी दैट, हाँ, इट्स लाइक समथिंग, चोर चोरी करने आ रहा है तो वहां पे अपन अपना जो खजाना होता है, जो आपकी वेल्थ है, वो आप ऐसी जगह हाइड करते हो कि जहाँ पे चोर चोरी नहीं कर पाए। तो सेम में स्टॉप लॉस का भी ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो व्हाट हैपन, आप यहाँ पे शॉर्ट किया, सेकेंड टाइम आपका ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर पोजीशन, तो आपको ट्रेंड भी डाउन साइड मिल गया, तो आपने वापस एंट्री कर लिया होगा, है ना। इट वेंट डाउन साइड, ब्रेक हो गया, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन, इट वेंट डाउन साइड अल्टीमेटली। अब बार बाय बार रीडिंग भी कर सकते हो आप, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स की रीडिंग भी कर सकते हो कि व्हाट हैपन, इट ब्रोक डाउन साइड, फिर क्या हुआ, एक रेंज में चला गया, है ना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये एक रेंज में चला गया। अब रेंज में चला गया तो क्या कर सकते हो, या तो आप ट्रेल कर लो या एग्जिट कर लो, है ना, क्योंकि अपन छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं और इतना बड़ा मूव आ गया है 6 7 8 पॉइंट का, तो क्या चाहिए हो, है ना। तो यू आर ट्रेडिंग, और स्टॉप लॉस भी आपका मिनिमम था। लाइट से अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ होता और आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो 356 के आसपास, तो तकरीबन 2 रुपए 3 रुपए का स्टॉप लॉस है, यू गॉट अराउंड लाइक 4 to 5 6 पॉइंट्स, दैट्स मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। या आप ट्रेल कर लो, बट ट्रेलिंग इन इंट्राडे वो शॉर्टर टाइम फ्रेम थोड़ा सा सजेस्टेड नहीं है। अगर आपको पता है कि लार्जर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, तो आप ट्रेल कर लो, नहीं तो प्रॉफिट बुक कर लो और अपने पास में बैंक में सिक्योर कर लो, ठीक है। तो या तो अगर आपने ट्रेल किया होगा, तो व्हाट विल बी द सिनारियो, आपने ट्रेल कर लिया होगा, है ना, तो फिर ये ब्रेक हो गया तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन अल्टीमेटली इट हैज गिवन अ गुड short trade. Why? Because larger time frame was bullish, first point. Second point,
अपन ने वीवेप का स्ट्रेटेजी यूज किया है ना, रेसिस्टेंस मिल गया, कैंडल स्टिक्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को अपन ने यूज किया, वीवेप स्ट्रेटेजी यूज की। अब वीवेप में क्या होता है, यहाँ पे वीवेप में क्रॉसओवर स्ट्रेटेजीज होती है ना। लेट मी शेयर यू समथिंग। अब व्हाट इज क्रॉसओवर, ये एक लाइन है सपोज, है ना। तो इफ द प्राइस इज क्रॉसिंग अबाउ, तो ये क्रॉसओवर अप साइड होता है ना, या तो प्राइस इधर ब्रेक होता है तो क्रॉसओवर डाउन साइड होता है ना, तो ये क्रॉसओवर होता है। अब क्रॉसओवर में अगर ये वीवैप लाइन है और क्रॉसओवर ऊपर हो रहा है तो चांसेस के बुलिश मूव्स ज्यादा है। बट लेट्स से अगर आपका स्टॉक बियरिश है लार्ज टाइम फ्रेम में, तो आप उस स्टॉक को छोड़ दो। समझो बात को ना, व्हाई वी हैव टू ट्रेड अपोजिट ऑफ द ट्रेंड। बोलते हैं ना लोग, ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेड विद द ट्रेंड। सो प्लीज ट्रेड विद द ट्रेंड। क्लियर? बियरिश है, अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ट्रेड विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर? and also apply some minimum technical analysis. क्लियर? होप इट इज वेरी क्लियर। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, अच्छा खासा प्रॉफिट मूव हो गया और आप यहाँ पे या तो सपोर्ट देख लो, कहीं सपोर्ट मिल रहा है, या अपने प्री डिफाइंड लेवल्स पे जहाँ पे कुछ रिवर्सल हो रहा है या कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है तो अपन वहां पे एग्जिट कर लिए, या कुछ कैंडल स्टिक्स ऐसे मिल गए जिसके विक्स हो रहे हैं डाउन साइड में ना कैंडल्स में, तो वो बोलते हैं रिजेक्शन मिलता है डाउन साइड में, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करो। ठीक है, बिकॉज वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, यू कैन नॉट थिंक फॉर दैट। आप ट्रेड लिया, एग्जिट, रेफरेंस ले लो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का, रेफरेंस ले लो, या तो आप उसको एक नॉर्मल इंडिकेटर का, या अगर कोई कंसोलिडेशन में जा रहा है या प्राइस एक्शन से कैंडल रिवर्स हो रहा है, एग्जिट कर जाओ, बिकॉज वी आर प्लेइंग इन अ वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। सेम वे विल लुक फॉर अदर स्टॉक्स ऑल्सो। लेट्स से बैंक निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी फ्यूचर चार्ट्स। अब बैंक निफ्टी फ्यूचर में आज मॉर्निंग में तो अच्छा खासा एक बाय लिया था अपन ने, इफ यू आर रिमेम्बरिंग। ठीक है, कब मैंने बताया था आपको, मैंने तकरीबन एक मैसेज यहाँ पे किया था, इफ यू आर अवेयर। तो मैंने एक मैसेज किया था यहाँ पे ना, इस टाइम फ्रेम में 18,050 के आसपास लेवल चल रहा था। वाई? बिकॉज ये वीवैप के ऊपर था, है ना, एक बार ऊपर था, वेंट अपसाइड एंड देन पुल बैक आया था और वो वीवैप पे स्टे कर गया। अब स्टे कर गया तो यार उसके बाद में इसने हायर लो बना लिया एंड शोइंग द ट्रेंड। तो आई थॉट कि यार ये एक रेसिस्टेंस है, इसका क्रॉस करा तो अच्छा पोजीशन मिल सकता है। तो व्हाट आई हैव बेसिकली इंटर्ड हियर, है ना, थोड़ा सा एक छोटा क्वांटिटी इंटर किया, फिर एक छोटा और क्वांटिटी ऊपर इंटर कर सकते हैं ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, स्टैगर्ड बाइंग भी कर सकते हो, जो बोल सकते हो ना पिरामिडिंग अपसाइड। बहुत लोग क्या होता है, लॉसेस को पिरामिड करते हैं, है ना। तो लॉसेस को पिरामिड करोगे तो लॉस ही मिलेगा, प्रॉफिट को पिरामिड करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर मेरा पोजीशन अगर लॉस में हो जाता तो मुझे कम लॉस में एग्जिट हो जाता मेरे आप। अगर मेरा पोजीशन में अगर प्रॉफिट होना था, पोजीशन सही है, तो मैं और क्वांटिटी ऐड कर लेता तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो आई वॉज वेरी लकी हियर, कह सकते हैं ना, लकी तो नहीं क्योंकि पता है अपने को, स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, माइंड यूज कर रहे हैं, एनालिसिस यूज कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप बोलेंगे लकी, यस लकी। ठीक है, तो व्हाट आई हैव डन, इधर लिया, ऑब्वियसली यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाया, छुपा दिया जैसा मैंने आपको बताया था इंडसइंड बैंक में, एंड जस्ट ट्रेडेड हियर एंड देन सडनली व्हाट अ गुड मूव, एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव मिल गया एंड देन यू सी द रिजेक्शन कैंडल। तो आई वाज लाइक भाई एग्जिट करो, बिकॉज इतना शार्प मूव मिल गया, 100 पॉइंट्स का मूव, है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया यहाँ पे, अगर 18,000 के आसपास भी मैंने अगर अपना स्टॉप लॉस लगाया 18,050, तो 50 रुपया रिस्क था, 100 पॉइंट मिल गया। यू नीड टू अंडरस्टैंड, 2:1 का ट्रेड मिल गया है, इट्स मोर देन इनफ। और क्या चाहिए। और फिर कैंडल स्टिक्स एंड देन यू विल सी निफ्टी, बैंक निफ्टी वाज नॉट एबल टू क्रॉस दिस। या तो अगर आपने मल्टीपल क्वांटिटीज में ऐड किया है तो आप वहां पे मल्टीपल क्वांटिटीज में थोड़ा थोड़ा पोजीशन रिड्यूस कर लो या पूरा एग्जिट कर लो, बिकॉज यू आर इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। क्लियर? एंड देन बिकॉज यू आर इन द स्मॉलर टाइम फ्रेम, सो प्लीज एग्जिट कर लो। ठीक है, ट्रेल भी नहीं करना है यहाँ पे, डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्लेयर यू आर। फिर क्या हुआ, स्टॉक वेंट डाउन साइड, यहाँ पे एक
ऑलरेडी डाउन साइड स्टार्ट हो गया एंड देन नॉट एबल टू क्रॉस। फिर अगर इफ आई जस्ट चेक, स्टॉक वाज जस्ट इन द डाउन ट्रेंड कंप्लीटली। Yes, Bank Nifty is showing downtrend in this time frame. Oh, but what happened is मैंने एक यहाँ पे भी मैसेज किया था कि बैंक निफ्टी क्रॉसेस द हाई तो ब्लास्ट हो सकता है, बिकॉज मैंने यहाँ पे देखा था तो थोड़ा वीवेब को क्रॉस कर गया था, तो आई वाज लुकिंग फॉर बाय साइड्स। बट व्हाट हैपेंड, सडनली इट फेस रेसिस्टेंस। तो मैंने एक टेलीग्राम पे ऑडियो भी शेयर किया था कि जो 155 पे थोड़ा सा चेंजेस हुआ था, जहाँ पे रेसिस्टेंस हुआ आई थॉट चलो थोड़ा सा एक प्रेशर आया होगा बिकॉज इट वाज द फर्स्ट रेसिस्टेंस और इट वाज अ शार्प मूव तो होल्ड किया, बट नो, इट हैज अ डिक्लाइनिंग रिलीज, है ना। एंड देन व्हाट हैपेंड, है ना, व्हाट हैपेंड, इट वेंट एंड ब्रोक बिलो द VWAP and then again the VWAP became resistance here, support and resistance wala rule, support and resistance wala rule। So what happened, I took my position on the short side। अब मैंने तो ट्विटर पे नहीं फॉलो किया बिकॉज वी आर नॉट एनालिस्ट की कॉल दे ब्रोकिंग हाउस, वी आर अ ट्रेडर इफ वी आर वॉचिंग ऑन स्क्रीन। वही मैंने लिखा था, वॉच स्क्रीन। मैंने बोला था कि हाई क्रॉस हुआ तो बहुत लोगों बोल रहे थे टारगेट बता दो, टारगेट बता दो बाय साइड की, बट आई कैन नॉट से दैट बिकॉज आई हैव टू वॉच this level. If it is crossing then only I will place a buy। being a trader you are playing with screen, not on calls। तो स्क्रीन पे तो शॉर्ट्स मिल गए थे एंड दैट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन केयरफुली कि यार मैं कभी अगर कोई वीडियो बना रहा हूँ अभी तो मैंने उस बात को वापस ले लिया। ऐसा नहीं कि वो एक्सप्लेनेशन वहां पे भी पूरा दिया था कि आप ट्रेडर हो तो स्क्रीन पे वॉच रखो, है ना। तो दैट्स व्हाई दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ प्रॉपर एनालिस्ट। वो लोग कॉल्स पे ही वर्कआउट करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड, अपना शॉर्ट पोजीशन अच्छा खासा एंटर हो गया था एंड देन यू कैन सी कि यार सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस लेवल भी अच्छा खासा ब्रीच हो गया था एंड देन वी हैड अ गुड फॉल। माय गॉड, रेफरेंस पॉइंट्स भी सब क्लीन हो गए थे, तो कहीं पे भी आप बुक कर लेते कोई भी लेवल्स पे, है ना, बिकॉज लॉन्ग कंसोलिडेशन आ गया था यहाँ पे, तो आप बुक कर लेते तो यू हैड अ बम्पर प्रॉफिट माय फ्रेंड, यू हैड अ बम्पर प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी। Clear? There are a lot of positions can be made here, there are a lot of places, but this is how VWAP can be used। Second strategy, let me share। this is another, है ना। मॉर्निंग में एक और ट्रेड था जो सन फार्मा में था। लेट मी शेयर। सन फार्मा का स्टॉक जो था, इफ यू आर अवेयर, डेली में आई ऑलरेडी सेड दैट, है ना, जो लोग, क्योंकि ये ट्रैप दिख रहा था, आई हैव सीन दैट बिकॉज ऑलरेडी एक कैंडल बन गया था, तो ट्रैप इज व्हाट आई हैव सीन। जो लोग शॉर्ट्स में थे, है ना, तो और ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ, यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल गया था, तो प्रॉफिट बुकिंग कैन बी अ गुड स्टेप हियर। तो बट अब यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट वेंट, है ना, मैंने एक बुलिश सिग्नल दे दिया था एंड वीवैप लगाते हैं, छोड़ो, वाओ व्हाट अ गुड वीवैप साइन हियर। ये ध्यान रखना कि मतलब ये अपन आफ्टर मार्केट में मैं थोड़ा बता रहा हूँ तो थोड़ा सा एक इजी भी हो सकता है, बट ऑन मार्केट में आप सोचना कि आपको प्रॉफिट बुक करना ही है। आप ये मत सुनना कि इतना बड़ा मूव आ गया, बिकॉज आप छोटे टाइम फ्रेम पे, या तो आप थोड़ा 5 मिनट्स पे ट्रेड कर लो, है ना, 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो, बट आई एम स्काल्पर, लाइक मैंने स्काल्पिंग किया था तो मैं 1 मिनट का ट्रेड यूज किया था, तो मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। बट आई डोंट सजेस्ट न्यू पर्सन के यार एकदम स्टार्ट करो, वॉच करना है इस स्ट्रेटेजी को, चेक करना, देन ओनली फॉलो इट, है ना। बहुत टाइम लगेगा, थोड़े चार्ट्स वॉच करना, देन ओनली यूज इट। पहले थोड़ा अमाउंट लेस यूज करना, डोंट ट्रेड विथ हैवी अमाउंट। फुल ब्रोकिंग अकाउंट का ट्रेड ले लिया आपने, है ना, हैवी रिस्क मत लेना, फिर आज आप आके मुझे गाली दोगे, है ना। दिस इज द ट्रू फैक्ट ऑफ द वीडियो। कोई भी पहला वीडियो बनाएगा तो इतना क्लियरली नहीं बताएगा आपको, तो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। चेक करो, फॉलो करो, जम रहा है तो यूज करो स्ट्रेटेजी, है ना। ऑब्वियसली आई हैव टेस्टेड, आई एम डूइंग इट, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, है ना। दिस इज द सरप्राइज बिकॉज आज चैनल स्टार्ट किया, सो वी हैव मेड दिस वीडियो, ठीक है। नहीं तो मैं वो वाले में 10,000 क्रॉस करने के बाद में बनाने ही वाला था। दैट्स ओके। चैनल को अच्छा लग रहा है तो अभी तक आप देख रहे हो, जुड़े हो, कमेंट दे दो, कुछ लाइक कर दो,
है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर कर दो आपके फ्रेंड्स के साथ में, मोटिवेशन मिलेगा बनाने के लिए। सो व्हाट हैपेंड हियर, तो ऑलरेडी बुलिशनेस दिख रहा था, एंड देन दिस वाज अ ग्रेट, सी we had a resistance here, and VWAP, it went above VWAP and is trying to stay there only, but facing some resistance at this point, ठीक है, and between this zones only, if you notice. So what is the scenario? If you have taken trade, obviously you have to do with support and resistance only, but this is a kind of like price going up and down, so kind of lot of volatility here, है ना। So there is already big move. If you notice here, if you read the bar by bar candlesticks here, then there is a big move. तो आप वहां पे सोच सकते हैं कि इतने बड़े मूव्स के बाद में आप ट्रेड ले रहे हैं, आप रेजिस्टेंस पे है, एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो आप वेट कर लो। वेट करने के बाद आपको आवाज में अच्छा खासा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला है ब्रेकआउट पे। रेजिस्टेंस वीवेब जो है आपका सपोर्ट इधर हो रहा है ना। पहले अपन ने अर्लियर केस में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था बिकॉज वो शॉर्ट साइड थे। यहाँ पे बुलिश है तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। फिर यू हैड अ गुड मूव, ऑब्वियसली आप बुक कर लो, या आप यहाँ पे सिग्नल देख रहे हो कि यहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहा है ना, और आप ट्रेल रख रहे हो तो ट्रेल पे आप एग्जिट कर गए यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इट वेंट एंड टच्ड यहाँ पे। अब कुछ लोग होंगे कि शॉर्ट कर दे, नहीं क्यों नहीं करना है, बिकॉज बुलिश स्टॉक है, तो वी विल नॉट प्ले ऑन द शॉर्ट साइड ऑन दैट स्टॉक अभी के लिए, ना। बिकॉज इफ यू आर अ न्यूबी एंड स्टार्टिंग, तो मैं तो अवॉइड करने को बोलूंगा। शॉर्ट में भी स्काल्प कर सकते हो, बट वो एक अलग ही थोड़ा सा एक आपको वहां पे बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। बट इफ यू आर हियर तो आप ट्रेड विद द ट्रेंड इज द बेसिक थिंग फॉर मी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा एक क्या हुआ था, यहाँ पे नीचे चला गया था बट नॉट एबल टू सस्टेन देयर, है ना। तो अल्टीमेटली केम अबव, तो यहाँ पे आपको वापस एक बाय सिग्नल मिला था एंड देन यू गॉट अनदर 2-3 पॉइंट्स। अल्टीमेटली फिर क्या हुआ, एक रेंज में चला के यहाँ पे आप देख सकते हो कि वापस ये इस जगह पे सपोर्ट होल्ड कर रहा था एंड देन अगेन यू हैड अ गुड पॉइंट्स। फिर यहाँ पे देखो एट द एंड फिर थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया था, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, है ना, सिक्योर कर लो। तो इट वाज अ गुड प्ले ऑल एंड ऑल। आपको एक स्ट्रेटेजी बताया है मैंने इंट्राडे में, आप यूज कर सकते हो। पहले तो आप ट्रेंड फाइंड कर लो स्टॉक का, वीवेप यूज कर लो, चेक कर लो क्या सिनारियो चल रहा है, बार बाय बाय रीडिंग कर सकते हो, टेक्निकल्स जो बेसिक है वो फॉलो कर लो। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। अच्छा लगा तो शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, कमेंट करो, लाइक जरूर करके जाओ, है ना। जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हो लाइक करके जाओ, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, ठीक है। उसके बाद में अगर हैक हो जाता है तो और दुख होता है चैनल, तो लाइक जरूर करके जाओ और पूरा वीडियो देखो, वापस देखो, एक बार वापस देखो तो स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ में आएगी। ट्रेड लो तो टैग करो मुझे ट्विटर हैंडल पे @रचित के नाम से, बताओ मुझे क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट कुछ दिन फॉलो करना, चेक करना स्ट्रेटेजी, कॉन्फिडेंस मिले तो ही ट्रेड करना। एंड देन ट्रेड कर रहे हो तो स्टार्ट विथ लेस अमाउंट, है ना, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ओके, रेस्ट इज ऑल इन योर हैंड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम।